Good evening, everyone. Welcome to all of you who have taken out time for this beautiful Sunday evening to attend the Sunday evening talk. Who all are coming here for the first time visitors. Welcome once again. So, for the benefit of first time visitors, I would like to give you a brief introduction about the organization. So, we, Brahma Kumaris organization, are a socio spiritual international organization aimed at personal transformation through Raj Yoga meditation and thereby bringing world peace. We are spread across 130 countries with more than 4,000 centers. The organization was founded in 1937. Headquarters is at Mount Abu, Rajasthan. We provide our services through different wings like education, IT, medical, sports, judiciary, media, etc. etc. Shanti Sarovar, our premises where we are sitting right now, is the biggest retreat center of South India, and we conduct many activities, workshops, and meditation camps here. So please take benefit of those. Join the WhatsApp group we have. If you don't know, you can ask at the reception, and then we will send you the updates about the activities and events happening here. Coming to the topic of today's talk, psychological safety. We all know that safety is very important. We all have physical safe space. But what about mental safety, emotional safety, safety about expressing ourselves freely? And how can we achieve that? So today we have very beautiful speaker, Sister BK Lalita Didi. She has come all the way from Pune. So let's welcome her on stage. Lalita Didi is senior Raj Yoga teacher, certified counselor, and trainer for various development subjects. Overall, she is having more than 2 decades of experience in the field of spirituality and associated with Brahma Kumaris International Headquarters, Mount Abu, Rajasthan. She is commerce graduated from Pune University and 2 post-graduation degrees in value and spirituality, counseling, and spiritual health. She has associated with educational institutes like D.Y. Patil College of Engineering, Jeel College of Engineering, Singer Institute College of Engineering, SNK Medical College, Nursing College, Jadhav Institute College of Engineering, Nursing and Arts College, Science College, Commerce College, JSPM College, Sahu College, etc. etc. For spiritual development, she also have associated with various industries like Fiat India, Bharat Forge, Bridgestone, Supreme, Dynamics Dairy, etc. She is in charge of Brahma Kumari's Pune Nanded city branch, where she conduct Raj Yoga meditation sessions daily and conduct training programs like stress management, art of positive thinking, mind power, self empowerment, anger management, personality development, emotional wellness, science of Raj Yoga, digital detox, de addiction, positive lifestyle, happy living, etc. So, over to you, Didi ji, for the session today. Thank you. ओम शांति। गुड इवनिंग। आपकी इवनिंग गुड है? सबकी इवनिंग गुड है? क्यों गुड है जी? क्योंकि हम गुड है, इसलिए हमारी इवनिंग गुड है। और क्या कहेंगे? क्यों गुड है? क्या फील करते हैं? क्यों गुड लग रहा है? हाँ, इतने अच्छे कैंपस में आए हैं और इतने अच्छे सेशंस आप अटेंड कर रहे हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, है ना। अंदर से ये फीलिंग है और इसलिए गुड लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
है ना। शांति सरोवर नाम ही कितना सुंदर है ना। ऐसे एंट्री करते ही अंदर क्या फील होने लगता है? पीस, साइलेंस, हैप्पीनेस, है ना। क्योंकि यहाँ के वाइब्रेशंस में ही वो सारी एनर्जीज है कि जो हमें एंट्री करते गेट से अंदर आते ही वो फील होने लगता है। शांति सरोवर मतलब है ही शांति का सरोवर। यहाँ आते ही मन को शांति मिलती है। फील करते सभी? हाँ। तो इतना सुंदर कैंपस में आए हैं और इतनी सुंदर इवनिंग है आज की, और टॉपिक भी है कौन सा? साइकोलॉजिकल सेफ्टी, है ना। सेफ्टी हर एक चाहता है, हर एक चाहता है हमारा लाइफ सेफ हो, है ना, हैप्पी हो, हेल्दी हो, और इसके लिए हर प्रकार की कोशिश हम करते हैं सभी। आज तक कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी साइकोलॉजिकल सेफ्टी की, है ना। रोड सेफ्टी की बात सुनी है, फिज़िकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, बहुत सारे सेफ्टी की बात सुनी है, लेकिन साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में कभी हमने ज़रूरत नहीं पड़ी थी या कभी सोचा भी नहीं था कि इसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आज तक हमने कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, अपने मन के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि साइकोलॉजी का कनेक्शन सीधा हमारे मन से है, अपने विचारों से है। हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, उसी का असर हमारे मन साइकोलॉजी पर आता है, हमारे जीवन पर आता है, और आज तक हमने इसका कभी ध्यान ही नहीं रखा है। इसलिए आज हमें ये दिन आया है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे, है ना, कोरोना समय गया और अभी का समय हम देख रहे हैं, तो इन सब में हमें एक गिफ्ट मिली है। मान लो ये समय की गिफ्ट हो, है ना, या हमारे ही कुछ ऐसे थिंकिंग की वजह से कि हम देखते एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, है ना, इस टाइप की फियर, इस टाइप की गिफ्ट सभी को मिली हुई है। लगता है ऐसे, है ना। हर एक की लाइफ में ये सारी बातें हो रही है, चाहे छोटे बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, या फिर बड़े हो, सभी इन बातों को फेस कर रहे हैं आजकल लाइफ में। और इसका कारण भी हम सब जानते हैं। बाहर से क्यों ना हम वेल सेटल है, सारी चीज़ों से है, हमारे इर्द गिर्द है, सब कुछ है हमारे पास, हेल्थ है, मतलब पैसा भी है, सब कुछ है, सुविधाएं है, साधन है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अंदर से वो खालीपन महसूस होता है, अंदर से वो खुशी नहीं है ना। अंदर से कुछ ना कुछ कमी को महसूस करते हैं, है ना। ऐसे लगता है कि नहीं, हैप्पीनेस नहीं है, सब कुछ है लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। और इसका कारण, है ना, धीरे धीरे मन की शक्ति कम होती जा रही है। तो आज हमें समझना है इन सभी बातों को, और हम कैसे साइकोलॉजिकली, इमोशनली या मेंटली फिट रहे, सेफ रहे। तो मैं कुछ आपसे सवाल करूँगी, आपने बताना है। हमारा आज का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव होगा। लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ? आपके मायने में आप लाइफ को क्या समझते हैं? लाइफ क्या है? जीवन क्या है? जी बताइए कोई। लाइफ इज़ अ एक्सपीरियंस, लाइफ इज़ अ जर्नी, और लाइफ इज़ अ टाइम बिटवीन बर्थ एंड डेथ। ओके, लाइफ इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। और जी, लाइफ इज़ अ सपोर्टिंग एंड ऑन ए जर्नी। ओके,
लाइफ इज़ अ जॉय एंड और क्या कहेंगे बच्चे लोग, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, आप क्या सोचते हैं क्या है लाइफ? अभी तो शुरुआत है बोले क्या समझते हैं? जी बताइए। इट्स अ जर्नी। ये कभी आज तक सोचा नहीं होगा क्या है लाइफ ठीक है। हाँ, कर्मों का फल है। ओके, बहुत सुंदर। हर एक ने उसके बारे में समझा है, सोचा है, या देखते हैं उस एंगल से अपनी लाइफ को, है ना। और जैसे एक दो जन ने जवाब दिया कि लाइफ इज़ अ जर्नी, है ना, एक यात्रा है। और इस जीवन की यात्रा में हम सभी यात्री हैं, है ना, हम सभी सफ़र कर रहे हैं। और जब हम यात्रा पर होते हैं, है ना, जैसे हम देखते रास्ते पर हम चल रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, हम भी ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? देख के चलते हैं, सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, है ना। सबसे पहले तो जर्नी मीन्स यात्रा, यात्रा मीन्स आनंद, है ना। लोग घूमने फिरने जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? अच्छा लगता है यात्रा, है ना, कुछ अच्छी फीलिंग होती है उसके साथ। और यात्रा पर चलते हैं, निकलते, सफ़र में निकलते हैं, चाहे, है ना, आप रोड से सफ़र कर रहे हैं, चाहे ट्रेन से कर रहे हैं, चाहे बाय एयर कर रहे हैं, लेकिन इस सफ़र में हम यही सोचते हैं कि अरे हमारा सफ़र बहुत अच्छा हो, एक दूसरे को हैप्पी जर्नी बोलते हैं सफ़र में, है ना। और हम भी यही सोचकर निकलते कि नहीं, हमारी यात्रा अच्छी हो, सफल हो। जो भी मिलते हैं बहुत ही मिलजुल कर, मुस्कुरा कर हम एक दूसरे के साथ बात करते, एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस भी करते हैं, उनका भी परिचय लेते, नए नए लोग हमें मिलते हैं और उनके साथ हम जर्नी पर होते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन कभी कभी, है ना, हमने सोचा भी नहीं होता है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं और उसके कारण हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर कई बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं, है ना। तो ये सब देखते हैं तो हम सोचते हैं नहीं, जब यात्रा पर निकलो तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। मान लो हम ड्राइव कर रहे हैं, हम भी गाड़ी चला रहे, रास्ते पर और भी लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो तब भी हम क्या करते हैं? सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। सामने वाला कैसी भी गाड़ी चलाए, हम क्या करेंगे? वो वैसी चला रहा है तो मैं भी वैसी चलाऊं? नो, है ना। हम देख के चलाते हैं, और क्या देखते हैं? हम सेफ रहे, हमसे कोई टकराए ना, है ना, हम सेफली आगे निकल जाए, है ना, कहीं पर भी फंसे नहीं, यही सोचते हैं, है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि कई लोगों की गाड़ी चलाते समय स्पीड ज़्यादा भी होती है, कईयों का ब्रेक फेल होता है, कई ओवरटेक करते रहते हैं, कईयों को आगे जाने की जल्दी रहती है, कई कारण हैं, कई बातें हैं। लेकिन ये सब जब चल रहा है तब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर ध्यान देते, अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान देते, नहीं मुझे अपने डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचना है। और भले ही, है ना, 5-10 मिनट लेट भी हो तो भी चलेगा, लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, मुझे सेफली अपने आप को भी बचाना है। और इसमें क्या होता है, जब हम खुद को सेफ कर रहे हैं तो सामने वाला भी अपने आप सेफ हो जाता है ना। एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला भले ही गलत तरीके से ड्राइव कर रहा है, गलत रास्ते से जा रहा है, लेकिन हम अपने आप को सेफ करते हुए अपना रास्ता थोड़ा सा साइड चेंज कर देंगे तो हम तो आगे निकल जाएंगे और वो भी आगे निकल जाएगा, है ना।
एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो जैसे इस यात्रा पर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और गाड़ी का भी ध्यान रखते हैं, है ना, गाड़ी अच्छी कंडीशन में हो, यात्रा के पहले ही सर्विसिंग करा लेंगे, गियर ब्रेक सब कुछ चेक करेंगे, है ना, अच्छी ब्रेक अच्छी है क्या ये तो पहले चेक करते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे भी लाइफ जीवन क्या है, एक यात्रा है और इस जीवन रूपी यात्रा पर हम निकल गए हैं, है ना। जैसे बताया कि लाइफ इज़ बिटवीन टाइम बिटवीन बर्थ एंड डेथ। तो हम तो बर्थ में मतलब आ गए, है ना, यात्रा पर निकल गए और अभी यात्रा हमारी चल रही और हम सबके साथ जा रहे हैं, सबकी यात्राएं चल रही है। लेकिन इसमें कौन सी बातें आती है ना, हमें ध्यान रखना पड़ता है इस बात का। तो हमें अपना भी ध्यान रखना है और हमारे साथ में जो भी है, जो भी चल रहे हैं, चाहे हमारे फैमिली में है, चाहे हमारे सोसाइटी में है या चाहे हमारे वर्क प्लेस पे है, प्रोफेशन में है, तो हम सबका भी, सबके साथ रहते हुए चलते हुए हमें सबका भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है और उनका भी ध्यान रखना है, ताकि कहीं पर भी स्वभाव संस्कारों के टकराव ना हो, कहीं पर भी, है ना, मन मुटाव ना हो या कहीं पर भी क्लैशेस ना हो, है ना, कोई भी बात ऐसी ना हो जिसके कारण हमारा मन डिस्टर्ब हो जाए, हमारी खुशी गायब हो जाए या फिर कोई अंदर रिग्रेट हो बाद में, है ना। कभी कभी बातें तो हो जाती हैं लेकिन बाद में फील होता है, बाद में रिग्रेट होता है, हाय हमने ऐसा क्यों बोला, हमने ऐसा क्यों किया, है ना। बात तो कुछ भी नहीं थी लेकिन फिर भी हमने उसको कितना, है ना, सीरियसली लिया, या इतनी सी छोटी सी बात है लेकिन हमने उसको इतना बड़ा किया। हाँ, और ये सब हमारी मन के ऊपर डिपेंड है, हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है ना। बात तो बात होती है, सिचुएशन तो सिचुएशन होती है, लेकिन कोई उसको छोटा समझता है, कोई उसको बड़ा समझता है ना। बात को छोटा करना, बड़ी बात को छोटा करना और छोटी बात को बड़ा करना, ये किसके ऊपर डिपेंड है? अपने ऊपर ही डिपेंड है ना। बात तो वही है लेकिन, है ना, उसको हम किस प्रकार से ले रहे हैं तो उसके आधार पर बातें बड़ी या छोटी हो जाती है। तो ये भी हमारा ही मन है, हमारा ही मन वैसे सोचेगा और सोच सोच के फिर उसको छोटा बड़ा करेगा। अब बातों को बड़ा करने में कुछ फ़ायदा है? नहीं है। और छोटा करेंगे तो है, फ़ायदा है ना। कोई भी बात हो रही है लेकिन बातों को अगर हम बड़ा कर देते हैं, है ना, तो वो इशू, है ना, बड़ा हो जाता है और जिसमें फिर हम सभी सफ़र हो जाएंगे, हम सभी की शांति भंग हो जाएगी, है ना। कोई किसी को भी शांति नहीं है, ना हमको ना दूसरे को। लेकिन कोई बात हुई, हमने उसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया, ज़्यादा सोचा नहीं, ठीक है, बात हुई, है ना। अभी हमें आगे क्या करना है, ध्यान रखना है, सेफ चलना है। तब हम क्या करते हैं, उसमें फ़ायदा हमारा भी होता है और दूसरों का भी होता है ना। दूसरे भी सेफ रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे, बात वही रह जाती है। और हम देखते बातें तो आती है जाती है ना। उसको पकड़ के रखना या छोड़ना, उसको छोटा करना या बड़ा करना, वो तो हमारे ही ऊपर होता है ना। तो, है ना, पूरा मतलब साइकोलॉजिकल सेफ्टी का पूरा कहेंगे किसके ऊपर है रखना, ध्यान रखना, तो ये सब हमारे ऊपर है, हम ही उसको सेव कर सकते हैं। अब इस सेफ्टी में, है ना, विशेष हमें ध्यान रखना होता है पहले खुद का। अगर हम खुद का ध्यान नहीं रख सकते, खुद को सेफ नहीं कर सकते, तो हम दूसरों को भी नहीं कर सकेंगे, है ना।
इसलिए हमें सबसे पहले अपने सेफ्टी के बारे में सोचना है, अपने मन की सेफ्टी के बारे में। और देखते हैं कि है ना, सुबह उठते ही मतलब जैसे फिज़िकल बात करें तो फिज़िकली है ना, हम सेफ्टी के लिए क्या क्या करते हैं। फिज़िकली सेफ रहे, फिट रहे, हेल्दी रहे, उसके लिए क्या करते हैं। योगा करेंगे, आसन करेंगे, वॉकिंग पे जाएंगे, और क्या करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे फिज़िकल फिटनेस के लिए। और क्या करते हैं, खाने पीने पे ध्यान रखेंगे, डाइट पे ध्यान रखेंगे, हेल्दी फूड लेंगे, है ना, अनहेल्दी फूड नहीं लेंगे, है ना, फ्राइड, है ना, जंक फूड, फास्ट फूड ध्यान रखते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है ना, इससे हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम ध्यान रखते हैं अपने डाइट पर। और किस बात पर ध्यान रखते हैं, फिज़िकल की बात है तो और किस बात पर हम ध्यान रखेंगे। एक तो हुआ डाइट, एक हुआ एक्सरसाइज, तीसरी बात कौन सी आती है, क्लीन रहना, टाइम मेंटेन करना, सुबह उठना, जल्दी सोना, है ना। सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तीसरी बात, वो है हमारी नींद, है ना। नींद भी हमारी प्रॉपर हो, इसका ध्यान रखते हैं। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, डिस्टर्ब होता है ना, फ्रेश फील नहीं करेंगे, सारा दिन है ना हमारा बिगड़ जाता है। हम देखते नींद पूरी नहीं हुई तो है ना बार बार इरिटेशन होंगी, क्योंकि रिलैक्स फील नहीं करते, फ्रेश फील नहीं करते हैं। तो है ना, एक दिन भी अगर मान लो हमारी एक रात भी पूरी नींद नहीं होती है तो इसका असर हमारे सेकेंड डे पे आता है, नेक्स्ट डे पे आता है। और कितने दिनों से ऐसे होता आ रहा है कि अब खुद ही अपना चेक करना कि क्या हमारी नींद प्रॉपर हो रही है ना। या कईयों को नींद की भी बीमारियां हुए, गोलियां खानी पड़ रही है, या फिर सोने जाओ तो जल्दी नींद नहीं आती है, बहुत विचार चलते हैं। कभी मान लो 10 बजे सोने गए और 12 बज गए, 1 बज गए तो भी नींद नहीं आ रही है, और या फिर नींद लग जाती है और आधे घंटे में 1 घंटे में ही अचानक नींद खुल जाती है और फिर नींद ही नहीं आती। ऐसा भी होता है कभी कभी, कईयों के लाइफ में तो वो हर बार होता है। सोचते हैं हमारी नींद ही ऐसी है कि बहुत जल्दी खुल जाती है और एक बार खुल गई तो फिर नींद नहीं आएगी। या फिर नींद तो नींद में है लेकिन सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं लग रहा है, मीन्स जो स्लीप क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी। उसकी क्वालिटी अगर लेवल कम है, लो है ना, सोए हैं लेकिन ड्रीम्स में चले गए हैं, प्रॉपर नींद नहीं है, सबकॉन्शियस है ना, माइंड में फिर भी ऐसे लगता है नींद है तो लेकिन फिर भी मन में विचार चल रहे हैं, तो ऐसे भी होता है। और जिसके कारण प्रॉपर नींद नहीं होती है तो वो रिलैक्सेशन है ना, हीलिंग नहीं होता है, और इसके कारण भी हमारा फिज़िकल पर असर होता है, शरीर पर असर होता है। तो वैसे ही हमें अभी मेंटल हेल्थ को भी अगर अच्छा करना हो, है ना, हेल्दी और सेफ, है ना, मेंटली स्ट्रांग होंगे तो सेफ भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा इन तीनों बातों पर। पहली बात डाइट की आती है ना। सबसे पहले जब हेल्थ को अच्छा बनाने की बात आती है तो सबसे पहला थॉट हमारा डाइट के बारे में चलता है कि हम जो डाइट ले रहे हैं क्या वो हेल्दी डाइट है। और सबसे पहले डाइट प्लान करते हैं, है ना, सुबह उठने के बाद मुझे क्या लेना है, चाय पीना है या नहीं पीना है ना, या गर्म पानी पीना है, क्या करना है। फिर ब्रेकफास्ट, है ना, फ्रूट्स लेना है या कुछ कुक फूड लेना है, क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, सब कुछ हम डाइट प्लान करते हैं।
तो मन के डाइट का प्लान करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए? नहीं करते हैं, करना चाहिए, है ना। साइकोलॉजिकल स्ट्रांग बनना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो उसके लिए हमें मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उसमें फिर पहली बात आती है डाइट की। तो मन का डाइट क्या है? क्या सोचते? थॉट्स, है ना। हम जो भी सोचते हैं ना, वो सब हमारा डाइट ही है, मन का डाइट है। अब डाइट मीन्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मान लो सुबह उठने के बाद हम जो भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, ये सब क्या है? डाइट में आता है। हम जो भी पढ़ते हैं, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे कोई बुक पढ़ रहे हैं, है ना, कई आर्टिकल पढ़ रहे, जो भी हम पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं मतलब कि जो भी रीड कर रहे हैं, अर्थात हम अपने मन को वो डाइट दे रहे हैं। तो हमारा रीडिंग मटेरियल, बुक्स चाहे न्यूज़पेपर, वो किस टाइप का है, कौन से लेवल के उसमें एनर्जी है, थॉट है, वो हमें चेक करना ज़रूरी है ना। और आजकल तो हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में या इन सभी बातों में तो ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी, है ना। कहीं पे कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं कुछ, है ना, भ्रष्टाचार हुआ, बहुत सारी बातें हैं। तो वो एनर्जी सुबह सुबह हम अपने मन को देंगे तो क्या होगा? सुबह से ही वो, है ना, मन को हेल्दी फूड मिला क्या? नहीं मिला। तो हेल्दी फूड मन के लिए डाइट, अच्छे विचार, अच्छे बुक्स रीड करना है, सुबह उठते ही पॉजिटिव थॉट्स लेना है, मेडिटेशन करना है ना। कोई अच्छे जो भी सुनते हैं, वीडियोस सुनते हैं, अच्छे वीडियोस, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोस हम सुने, सत्संग में आए, सत्संग में हमें बहुत अच्छे थॉट्स मिलते हैं, है ना, और बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, एक्सपीरियंस मिलते हैं, और उससे भी हमारे मन को एक हेल्दी डाइट मिल जाता है। तो सुनना, देखना, टीवी देखते हैं आज, है ना, या मोबाइल भी है आज, हर एक के जेब में ही वो सब कुछ है ना? तो उसमें फिर हम क्या देख रहे हैं, किस टाइप के वीडियोस देख रहे हैं, तो वो एनर्जी हम अपने मन को दे रहे, वो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वैसी ही हेल्थ हमारी बनेगी। और क्या सुनते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनते क्या है? जैसे लोगों से हम मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, चाहे फ्रेंड से मिल रहे हैं, चाहे, है ना, अपने परिवार वालों से मिलते हैं, जब भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम कौन सी बातें कर रहे हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम, है ना, अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा बातें करते रहते हैं, है ना। इसने क्या किया, उसने क्या किया, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है ना। बल्कि उसके साथ हमारा कोई कनेक्शन भी ना हो, या उससे कोई हमें फ़ायदा भी ना होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसी बातें भी हमारे बीच चलती रहती है ना, एक दूसरे पर, है ना, ब्लेम करना, ये सब। तो फिर अगर हम लोगों के बारे में बातें करते रहेंगे, तो वो हम कौन सी एनर्जी ले रहे हैं, कौन सा डाइट मिल रहा है हमको। जैसे कोई आकर के हमें कुछ सुना रहा है ना, आज इसने ऐसा किया, वैसा किया, किसी की निंदा, किसी की ग्लानि, किसी के, है ना, गॉसिपिंग करते हैं, तो वो सब, वो कौन सी एनर्जी, कौन सा डाइट हमें फूड मिल रहा है हमारे मन को। तो वहाँ हेल्थ की बात आती है, मेंटल हेल्थ की, तो उसको अभी हमें समझना है ना, और वहाँ भी प्लान करना है। तो प्लान कर सकते हैं, है ना, मन में। उसके लिए ज़रूरी है दृढ़ संकल्प करना, है ना। ऐसे नहीं कि ठीक है, मैं अभी आज से ना कोई भी गॉसिपिंग नहीं करूँगी, है ना, या कोई क्या कर रहा है उससे मुझे कुछ नहीं है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना है, मुझे क्या करना है।
अब आज तो हम सोचते हैं, लेकिन क्या ये सोच हमारी कल भी रहती है? या ये सोच बस इस कुर्सी पर बैठे हैं और तभी है, फिर यहाँ से उठ के बाहर निकल गए और ये सोच बदल गई, या कोई मिल गए, हम भूल गए और बातें शुरू हो गई तो शुरू हो गई, क्या वहाँ हम फुल स्टॉप लगा पाते हैं? है ना? तो मतलब वो अटेंशन वो भी वहाँ पर होना ज़रूरी है ना? तो मतलब कोई भी डाइट प्लान कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना। और उसके साथ साथ फिर ये भी आता है ना, जैसे हम सोचते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है ना? गुस्सा आता है? आता है, सबको आता है। ये कोई सवाल है क्या? है ना? और ज़्यादातर सभी क्या कहते हैं, गुस्सा क्यों आता है? हाँ, कि सामने वाले ने अगर कोई गलती कर दी, उसने अगर झूठ बोला, या हमारे मन के विपरीत कोई किसी ने कुछ किया, तब हमें गुस्सा आता है, नहीं तो नहीं आता। वैसे नहीं आता है गुस्सा, हम गुस्सा नहीं करते, सामने वाला मुझे गुस्सा दिलाता है तब मुझे गुस्सा आता है ना? अब ये एनर्जी क्या करेगी हमें? गुस्सा आया मतलब क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले ने कुछ किया और उस सिचुएशन, वो सीन को देख कर के हमारे मन में थॉट चले, है ना? और फिर हमारे अंदर की वो इमोशन, है ना, क्रोध वाली, गुस्से वाली इमोशन आ गई और हमने गुस्से में फिर कुछ बोला हो, कुछ किया हो, तो मतलब वहाँ एक्सीडेंट हो गया, है ना खुद सेफ रहे, है ना? फिर जिसके ऊपर गुस्सा किया तो उसके ऊपर भी वो चीज़, है ना, असर करेगी, वो भी मन में रखेगा कि अरे मुझे डांट मिली, मेरे ऊपर गुस्सा हुआ, ये सब बातें, तो ये क्या होगा? एक्सीडेंट। तो हमें हमारे आसपास ऐसी वैसी बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि है ही कलयुग, बोलते हैं ना, है ना, है ही दुनिया में आजकल सब ऐसे ही है। तो फिर ऐसे होते हुए भी हम अपने आप को सेफ रखें, सामने वाला कुछ भी करे, लेकिन हमारी, है ना, ये स्टेबिलिटी स्टेबल ही रहे, है ना? यहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना हो, इरिटेट ना हो, या फिर गुस्सा ना आए। तो इसका ध्यान रखना ही क्या है? सेफ्टी है, मतलब साइकोलॉजिकल सेफ्टी। यही थिंकिंग है कि हमें अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी स्थिति को सेफ रखना है ना? किसी भी परिस्थिति का असर हमारे ऊपर ना हो, है ना? वहाँ फ्लक्चुएशन आई तो यहाँ भी फ्लक्चुएशन आ गई, ऐसा ना हो। वहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो यहाँ भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, वहाँ कुछ चल रहा है, यहाँ भी कुछ होने लगा, तो फिर ये क्या है? ये सेफ नहीं है ना? इससे तो फिर और भी बातों में उलझ जाएंगे, है ना? इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि सामने भले कुछ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ ध्यान देंगे अपने आप पर कि नहीं, मुझे स्टेबल रहना है और स्टेबल रह करके इस सिचुएशन को क्रॉस करना है। मतलब फिर इसमें से रास्ता निकाल के मुझे अपने आप को भी सेफ करना है और सामने वाले को भी। बातों को बढ़ाना नहीं है, ठीक है? जो भी हुआ कार्मिक अकाउंट है, पास्ट कर्मा है, ड्रामा है ना? और इसलिए फिर हमें बस क्या करना है, इससे बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है, लेट गो करना है ना? और ऐसे करके हम अपने आप को भी सेफ कर सकते हैं, दूसरों को भी सेफ कर सकते हैं, है ना? अब देखिए आपके घर में, है ना, हम हर एक चाहता है हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक हो, है ना, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो, अपनी जगह पे हो, घर में आओ, घर नीट और क्लीन हो, है ना? और जिस घर में जैसे छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि बड़े कुछ नहीं करेंगे। कईयों का संस्कार रहता है ना कि कई चीज़ें कहीं भी पड़ी रहती है, या एक बार उठाई तो वहीं पे छोड़ देंगे, है ना, जगह पर नहीं रखेंगे। तो हम सोचते कि अरे नहीं, सबको बताते, घर में भी बताते, सर जैसे अपने बच्चों को बताया, आपके खिलौने जगह पर रखो, खेलने के बाद सब कुछ अपने अपने जगह पर रखो। लेकिन अगर आप घर में बच्चे वैसे नहीं करेंगे तो क्या होता है? गुस्सा आता है,
है ना। पहले हम प्यार से बताएंगे, फिर थोड़ा डांट लगा कर बताएंगे, है ना। और तब भी नहीं मानेंगे तो, है ना, मतलब ये बातें होती है तो गुस्सा आता है, लेकिन अगर उस टाइम पे भी, है ना, मेंटली यहाँ स्टेबल रह कर के फिर हम उस सिचुएशन को अगर अच्छे से, है ना, हैंडल कर लेते हैं, या उनको बच्चों को भी जैसे बताते कि छोटेपन से ही उन संस्कारों को कैसे उनके अंदर डेवलप करना है, तो वो ध्यान रखेंगे तो फिर घर की एनर्जी भी, है ना, उनको बच्चों को भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेंगी, क्योंकि उनके ऊपर भी हमारे ही विचारों का प्रभाव पड़ेगा, है ना। जैसे बताया कि शांति सरोवर में आप आए, है ना, आप बाहर जाओ गेट के बाहर, और वहाँ की एनर्जी और गेट के अंदर आओ, यहाँ की एनर्जी डिफरेंस महसूस होता है ना। वैसे आप अपने घर में जाओ, वहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी, है ना, डिफरेंस है। तो वो एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे, है ना, लगातार मतलब अच्छे विचार चलते हैं, जो भी एनर्जी फ्लो है, मेडिटेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग है, सभी एक दूसरे को रिगार्ड देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, सब एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने आप एनर्जी फील्ड चेंज होगा। आप अपने घर की भी एनर्जी को ऐसे ही बना सकते हैं, है ना, उस फील्ड को भी, है ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील मतलब बना सकते हैं सिर्फ अपनी सोच के आधार पर, है ना। सोच से ही सब कुछ होता है, कहते बीमारी भी बढ़ती है सोच से। अगर गलत सोचा इसलिए बीमारी, अगर हमने सही सोचा तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। जैसे कोई बीमार है, वो अगर बार बार कहता रहेगा मैं बीमार हूँ, बीमार बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, क्या होगा? वो बीमारी और भी बढ़ेगी। लेकिन अगर वो सोचेगा कि नहीं, मैं हेल्दी हूँ, मैं ठीक हूँ, है ना, बीमारी है बस हो जाएगी ठीक, है ना, तो जितना वो हेल्दी ठीक हूँ ऐसे कहेगा, तो धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा कहते सब कुछ अच्छा हो जाता है। और अगर हम बार बार सोचते रहेंगे ये ऐसा है वो वैसा है, कंप्लेंट करते रहेंगे, तो वो बातें फिर वैसे ही होती जाती है। और इसलिए हमें अपनी सोच पर, अच्छे विचारों पर ध्यान देना है कि नहीं, जो भी है हम अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, और थिंकिंग को हमेशा हाई, है ना, अच्छे विचार रखें। भले बातें कैसी भी हो, लेकिन फिर भी हम अपने विचारों को अच्छा सोचेंगे। अब जैसे हम खुद का ध्यान रखते, हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है ना। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन ने, है ना। और उन्होंने जब पहला उनका टेस्ट था, बल्ब बनाया उन्होंने, और उसका टेस्ट था, डेमो था, तब की बात है ना। उन्होंने बहुत रात दिन मेहनत की, है ना, उसको बनाने में। और जब वो बल्ब बना और पहला डेमो था, डेमो के लिए निकलना था, और उनके साथ जो भी असिस्टेंट, जो भी बॉय था, तो उन्होंने उनके हाथ में वो बल्ब दिया और उनको कहा कि ये बल्ब आप डेमो के वेन्यू पे लेके जाओ, और मैं आता हूँ। और वो जो भी लड़का था, वो बल्ब लेकर के जा रहा था डेमो के वेन्यू पर, और जाते जाते बीच में ही क्या हुआ, उसको ठोकर लग गई और वो गिर गया, और वो बल्ब टूट गया। और उसको बहुत बुरा लगा। अभी ऑब्वियसली, है ना, जब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वो डेमो होने वाला था, पहला उसका डेमो था बल्ब का, और उसके हाथ से वो बल्ब टूट गया। उसने कुछ जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हो गया उससे। तो उसको क्या लगा होगा? वो खुद को बहुत बुरा फील कर रहा था, गिल्टी फील कर रहा था, मेरी वजह से आज ये डेमो नहीं हो पाया, है ना। और जब ये मैसेज आकर के
एडिसन साहब को बताया गया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तब उन्होंने क्या सोचा? क्या सोचा होगा? गुस्सा आया होगा। जनरली हमारे साथ अगर ऐसे होता तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता और बहुत ज़्यादा बातें भी हो जाती कुछ कुछ लेकिन थॉमस एडिसन सर को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है मैं, और वो फिर से दूसरा बल्ब बनाने में लग गए और उन्होंने फिर से दिन रात मेहनत की और फिर दूसरा बल्ब तैयार किया। और अब नेक्स्ट डे फिर से डेमो था। अभी उनके जो भी फ्रेंड्स थे और असिस्टेंट थे वो सब अभी तो बहुत ही केयर ले रहे थे कि नहीं इस बार डेमो सक्सेसफुली होना चाहिए, है ना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और सभी उसके लिए कंसर्न थे। अब जब डेमो के लिए निकलना था, एडिसन सर है ना उनके लैब से बाहर आ गए, बल्ब हाथ में था। अब वो डेमो वेन्यू पे लेके जाना है। सामने सब लोग खड़े हैं, उनके फ्रेंड्स भी खड़े, वो लड़का भी खड़ा है जिसने पहली बार लास्ट टाइम वो बल्ब गिराया था और टूटा था, वो भी सामने खड़ा था। अब सब जब वहाँ पे खड़े थे, सिर्फ वो जो लड़का था उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसको तो फील हो रहा है ना, वो बात याद आ रही है कि है ना उस टाइम पे मेरे से वो ये हुआ था, इसलिए वो नज़रें नहीं मिला रहा था, सामने नीचे झुककर खड़ा था, गर्दन नीचे थी। और एडिसन साहब ने देखा कि सबकी तरफ देखा, अभी ये बल्ब मुझे किसी के हाथ में देना है ताकि वो डेमो वेन्यू पे लेके जाए। अब उन्होंने देखा सबको और फिर उसी लड़के को बुलाया जिसको पहले उन्होंने बल्ब हाथ में दिया था, उसको बुलाया और कहा ये बल्ब ले लो और आप इसको डेमो वेन्यू पे लेके जाओ। अब ये जो सीन चल रहा है, बाकी लोग देख रहे हैं, क्या उनके मन में क्या आया होगा, है ना, अरे इसको क्यों दे रहे हैं, इसके साथ पहला एक्सपीरियंस क्या था, फिर वही गलती सर क्यों कर रहे हैं, है ना। अभी तो किसी और को उन्होंने चांस देना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहिए कि ताकि वो सेफली डेमो वेन्यू पे लेके जाएगा। लेकिन सर ने क्या किया, उसी बंदे के लिए हाथ में ये बल्ब दे दिया, उसी को आगे बुलाया, उसी को दिया और कहा कि इसको लेके जाओ। और इस बात को लेकर के बाकी लोग गुस्सा हो रहे थे, उनको अनसेफ फील हो रहा था कि नहीं अभी कोई रिस्क नहीं चाहिए, और वो सर को बोल रहे थे कि सर आप किसी और को दीजिए, वो ले जाएगा, आप इसको मत दीजिए क्योंकि पिछली बार जो हुआ है अब नहीं होना चाहिए। तब सर ने कहा नहीं यही बच्चा लेके जाएगा, और देखा गया कि उस बच्चे को उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, खुशी थी। अब वो क्या करेगा, उसको जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई दोबारा, वो क्या करेगा, हाँ वो ध्यान रखेगा ना, नहीं मेरे से गलती हुई थी, अब मुझे कोई गलती नहीं करनी है, और भी ज़्यादा वो ध्यान रखेगा उसका कि नहीं ये बल्ब ठीक से वेन्यू पे जाना चाहिए, और वो अपने आप पर भी ध्यान देगा, बल्ब पर भी ध्यान देगा, और टाइम पर मतलब उस जगह पे पहुंचा देगा। और ये बात, ये साइकोलॉजी सर ने समझ ली थी, जो हम कोई भी वहाँ होते तो भी नहीं समझ पाते। और इसलिए थॉमस एडिसन मतलब इतने ब्रिलियंट थे, इंटेलिजेंट थे, और आज उनका नाम जग में है। क्योंकि है ना, बातों को या ऊपर ऊपर हम देखते सोचते करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी को भी समझना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, जब सभी लोग उनको बोल रहे थे कि आप इसको क्यों दे रहे, इसको मत दो, इसने पहले गिराया था, अभी भी ऐसे हो गया, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर अभी मैं इसको ये चांस नहीं दूंगा तो ज़िंदगी भर उसके मन में वो बात रह जाएगी।
बल्ब तो क्या, अगर आज टूट गया तो मैं फिर से दूसरा बना सकता हूँ, लेकिन अगर इसका दिल टूट गया तो मैं इसको दोबारा कभी नहीं जोड़ सकता, है ना। और इस बात के कारण मतलब इस साइकोलॉजी को उन्होंने समझा और फिर उसको वो चांस दिया। मतलब उन्होंने ज़िंदगी भर के लिए उसके दिल को, साइकोलॉजी को सेफ किया, उसके दिल का ध्यान रखा। वैसे ही बहुत सारी बातें हमारे लाइफ में भी हो रही है, हुई है, हो रही है और आगे भी हो सकती है, ऐसी बातें आ सकती है। तो यहाँ पर हमें अपने भी साइकोलॉजी का ध्यान रखना है, अपने भी मन का ध्यान रखना है और दूसरों के भी, है ना, उनके भी साइकोलॉजी को समझना है और सबकी साइकोलॉजिकली सभी हेल्दी हो, फिट हो और उनकी वो लेवल अपग्रेड हो, हाई हो, है ना। उसको, उस हेल्थ को हमें बढ़ाना है, अपने हेल्थ के साथ उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो इन बातों को भी हमें समझना ज़रूरी है ना। और हम देखते हैं कि कई छोटी छोटी भी ऐसी बातें होती रहती हैं जिसके कारण मान लो हम तो सही चल रहे हैं लेकिन सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना। तो हम सोचते हैं अरे हम कब तक अच्छा रहे, हम कब तक, है ना, सही सोचते रहे, बातों को इग्नोर करते रहे, कब तक हम सहन करते रहे, कब तक हम सुनते रहे। सामने वाला सुना ही रहा है, आज सुनाया, कल सुनाया, परसों सुनाया, रोज़ सुनाता ही रहता है, सुनाता ही रहता है और हम स्माइल देख के सुनते रहते, है ना। हम ऐसे मतलब बाहर से तो दिखा रहे हैं ठीक है ठीक है, ओके ओके, लेकिन अंदर से तो चल रहा है कि नहीं, कब तक कब तक कब तक और फिर, है ना, अपने अंदर से भी हमारी वो बैटरी, है ना, लो होती जाती है, डिस्चार्ज होती जाती है। तो इसलिए हमें, है ना, जैसे बताए, डाइट का ध्यान रखो, स्लीप, है ना, नींद का भी ध्यान रखो, है ना, प्रॉपर स्लीप हो, जल्दी सो, जल्दी उठो और मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन ये क्या चीज़ है कि जो हमारे मेंटल हेल्थ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आज की डेट में हम देखते हैं सभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, मेडिटेशन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी ये अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मेडिटेशन करने से माइंड रिलैक्स हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है और, है ना, मेंटली भी हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हैप्पीनेस जो हर एक चाहता है लाइफ में, उसको वो फील कर पा रहे हैं और इसलिए वो, है ना, मेडिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें भी, है ना, बहुत सारी बातें हो रही है लेकिन इसमें हमें अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। तो एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज, है ना, माइंड जिम, है ना, बहुत सारी वर्ड्स उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमें करना पड़े। तो फिज़िकल हेल्थ के लिए मिनिमम 45 मिनट्स एक्सरसाइज, वॉकिंग जो भी बताते हैं, 45 मिनट्स मिनिमम, 1 आवर डेली, है ना, एक्सरसाइज के लिए आप टाइम निकालो। मेंटल हेल्थ के लिए, साइकोलॉजिकली फिट रहने के लिए, सेफ रहने के लिए हमें भी, है ना, दिन में कम से कम 1 घंटा चाहिए। जैसे फिज़िकल हेल्थ के लिए हम 1 घंटा देते हैं, वैसे हमें मन के भी स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए। और उसमें हम, है ना, अच्छी जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो भी हाई एनर्जी वर्ड से, जो जिसको हम पॉजिटिव अफर्मेशंस कहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी कहेंगे, और मेडिटेशन अगर हम डेली इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, डेली सुनते जाएंगे, मेडिटेशन करते जाएंगे, तो आप ये फील करेंगे कि आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ में सुधार आ रहा है या ये बढ़ता जा रहा है या ये स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। और जब यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई तो अपने आप लाइफ में भी आप
स्टेबल रहेंगे और कैसी भी सिचुएशन सामने आएंगी तो भी आप बहुत ही अच्छे से उसको फेस कर सकेंगे, है ना। आपकी मूड को, है ना, ज़्यादातर बोलते हैं ना मूड, है ना, ख़राब हो जाता है, तो उसको ठीक रखते हुए, मेंटली स्टेबल रहते हुए उसको पास कर सकेंगे, है ना। खुद को भी सेफ कर सकेंगे और उनको भी सेफ कर सकेंगे, है ना। सेफ्टी, है ना, दोनों साइड हो जाएगी। तो इसके लिए डेली मेडिटेशन करना ज़रूरी है, अपना मन का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अभी एक हम छोटी सी एक्टिविटी लेते हैं, है ना, और जिस एक्टिविटी में आप सभी को एक एक बलून दिया जाएगा, है ना, और फिर आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। तो मैं कोऑर्डिनेटर्स को कहूँगी कि सभी को एक एक बलून दें। ये जो बलून्स आपके हाथ में आ रहे हैं, है ना, आप कौन सी थिंकिंग के साथ उसको रिसीव कर रहे हैं, आप देखना, सोचना। एक बहुत ही सुंदर ये एक्टिविटी है। अब हम देख रहे हैं कि अभी ये, है ना, दिसंबर मास है ना, ईयर एंडिंग, है ना, पुराना साल अभी जाएगा, फिर नया साल आएगा, है ना। और अब नए साल के साथ हमें कुछ नए संकल्प करने हैं, है ना। आज ही हमने जो कुछ भी सुना है, समझा है, अभी उसको एक्शन प्लान में लाना है ना, उसको आगे करना है। अब देखिए कि जैसे नए साल में नया क्या करना है, तो जो भी करना है वो हमें आज ही तय करना है और आज से ही उसको एप्लीकेशन करना है या प्रैक्टिकल में लाना है। तो आपके हाथ में, है ना, जितनों के पास भी ये बलून आया है, अब ये बलून क्या है, ये आपका दिल है, मन है ना, है, फील करें। और अभी इसको आपको सेफ रखना है। अब जिसके भी हाथ में बलून आए वो सब खड़े हो जाएंगे। शुरुआत हो गई है। है ना। तो अभी आपका ये दिल है, आपका मन है ये, और इसको आपको सेफ रखना है ना। कोई भी आप अभी कैसे सेफ रखना है वो आप देखिए, है ना। तो यहाँ पे एक म्यूज़िक भी बजेगा साथ में, है ना। और इसके साथ साथ आप क्या करना है, आपको आपके बलून, मतलब ये आपका मन है, आप उसको बलून के रूप में नहीं देखिए, ये आपका मन है, ये आपका दिल है, और आप चाहते हैं सदा हम हैप्पी रहें और हैप्पीनेस लेवल हमारा बढ़ता रहे, ऊंचा रहे। तो आप क्या करेंगे, इस बलून को उड़ाएंगे, अर्थात आपकी हैप्पीनेस लेवल को आप हाई लेवल पर लेके जाएंगे, है ना। तो इसको आपको उड़ाना है और इसको गिरने नहीं देना है, ठीक है। आपका दिल नीचे गिर ना पाए, टूट ना पाए, फूट ना पाए, है ना, इसका ध्यान आपको रखना है। अभी थोड़े बीच में कुर्सियां हैं इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन कोई ओपन एरिया में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो म्यूज़िक, वो सॉन्ग, एक सॉन्ग प्ले करे होगा, इस सॉन्ग के साथ आप अपने बलून को हवा में उड़ाएंगे, हाथ में पकड़ के नहीं रखना है, इस हैप्पीनेस की लेवल को आपको बढ़ाना है ना, और गिरने नहीं देना है। कोई जिनके हाथ में अभी बलून नहीं है वो कोशिश करेंगे आपके बलून को लेने की, फोड़ने की, है ना, डिस्टर्ब करने की, आपकी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करने की, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, है ना। तो आप अपने मन का भी ध्यान रखेंगे, दूसरों का भी ध्यान रखेंगे, गिरना नहीं है ना। ओके, स्टार्ट। म्यूजिक को बढ़ाएं। देखिए कितना सुंदर सीन लग रहा है। जिनके हाथ में बलून नहीं है वो थोड़ा साइड में आके देख सकते हैं। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। देखते हैं किसका बलून ज्यादा ऊपर जा रहा है। हैप्पीनेस
हैप्पीनेस ज़्यादा ऊपर जा रहा है। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी आप इसके साथ डांस भी कर सकते हैं। पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े, दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। मुझे कब था पता इसका, तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा। मुझे कब थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर कोई तू भी बलून सदा गिरना नहीं कोई चाहिए। विराजेगा। कोई और भी सबका- कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी। माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी किसी का बलून अगर गिर रहा है दूसरा उसको हेल्प कर सकता है, गिरने ना दे। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। और सभी बहुत अच्छा एंजॉय करें। जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। करनो मेलो जाम्यो जाम्यो हेतनो हुडो, करनो मेलो जाम्यो जाम्यो हेतनो हुडो। हाले गोरी रमी लये मेलो थाचे पुरो। करनो मेलो जाम्यो जाम्यो हेतनो हुडो, करनो मेलो जाम्यो जाम्यो हेतनो हुडो। मेरे जीवन के कल्ले में तेरा प्यार ही तो मेरा धन है, तू है तो धनवान हूँ मैं। प्रेम के इस मोहल्ले में मेरा घर तेरा ही तो ये मन है कि तेरी मेहमान हूँ मैं। जैसे सुगंध फूल के संग चांद के संग किरण, जैसे रसादारों के संग बाबे के संग नगन। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ये जो पतंग है तेरे ही संग है, तेरी ही ओर देख मुड़ी मुड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े, दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा आपने अपने मन को संभाला है अपने दिल को संभाला है और इतना अच्छा एंजॉय किया। अब बताइए किस किस का बलून, किस किस का दिल टूटा अच्छा और किस किस का गिर गया? गिरा था किसी का? अच्छा, गिर भी गया देखिए एक छोटा सा बलून है और उसको भी अगर हमें है ना उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमें कितना ध्यान करना पड़ता है। वैसे ही हम अपने मन का भी ध्यान रखें, है ना। सेम एक्टिविटी हम एक इंडस्ट्री में करा रहे थे और उसमें ऐसे हुआ, हॉल में ऊपर एसी लगे हुए थे जैसे यहाँ पे भी है, तो सभी ऐसे ही ऊपर बलून को उड़ा रहे थे और किसी किसी के बलून तो ऊपर ही जाके बैठ गए
तो मतलब जैसे हाई लेवल पे सदा, तो हमने कहा सदा ऐसे ही सदा खुश रहना, आपका बलून आपका दिल ऐसे ही हाई एनर्जी के साथ जुड़ा रहे, कनेक्ट रहे। तो ऐसे, और यहाँ पे हमने देखा कि एक के हाथ में बलून था, दूसरे के हाथ में नहीं था, लेकिन वो एक दूसरे को पास कर रहे थे और उसको और एक दूसरे के हैप्पीनेस को मान लो बढ़ा रहे थे, दोनों भी एंजॉय कर रहे थे। तो ये भी है ना, अपने हैप्पीनेस को बढ़ाने की, खुद के साथ साथ दूसरों को भी, क्योंकि यहाँ पे मतलब जानबूझ के हमने कम बलून दिए थे ताकि अब दूसरों को भी कितना एंजॉय करने में शामिल कर लेते हैं ये भी देखना था, है ना। खुद भी कर रहे, औरों को भी करा रहे, और बहुत सुंदर सीन यहाँ से दिख रहा था, तो हमने भी बहुत अच्छा एंजॉय किया। तो इसी, है ना, हैप्पीनेस की इस हाई एनर्जी के साथ ही आज आप अपने घर जाएंगे और नेक्स्ट ईयर जो भी आने वाला साल है, उस साल में ऐसे ही सदा हैप्पी रहेंगे, ऐसे ही सदा खुश रहेंगे, और है ना अपने साइकोलॉजी मतलब खुद भी सेफ रहेंगे, दूसरों को भी सेफ रखेंगे, चाहे घर में हो, चाहे सोसाइटी में हो, बाहर हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, हर स्थान पर जहाँ भी रहेंगे हम भी सदा खुश रहें और हमारे साथी भी सदा खुश रहे, और इसका हमें ध्यान रखना है। रखेंगे सभी ज़रूर। तो चले अभी हम मेडिटेशन के ओर चलते हैं। जैसे मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन आप सभी, आप में से कौन कौन करते हैं मेडिटेशन? अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये मेडिटेशन जैसे 1 दिन 2 दिन 7 दिन 8 दिन करने से है ना कुछ नहीं होता है। जैसे एक दिन हमने डाइट प्लान अच्छा किया और दूसरे दिन अगर ऐसा वैसा खा लिया तो क्या होगा, हेल्थ फिर से बिगड़ने वाली है। मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, डेली ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मेडिटेशन भी हमें रोज़ करना चाहिए, खुद का ध्यान रखना है, रोज़ रखना चाहिए। तो मेडिटेशन को अभी हम समझते हैं और अभी हम मेडिटेशन एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे इसमें है ना, हमें बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है और हमें उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट होना है। सबसे पहले तो हम अपने आप से कनेक्ट होंगे और उसके बाद हम उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे कि जो सुप्रीम पावर है ना, जिनसे हमें वो सारी पावर्स मिलनी है ना, वो एनर्जी मिलनी है जिनसे हम फिर से चार्ज होने वाले हैं। तो इसमें जैसे एक तरफ से हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि है ना जब तक हम यहाँ से दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं होते तब तक हम परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और इसलिए हमें सबसे पहले ये करना है कि ये समझना है कि मैं कौन हूँ, है ना। क्या मैं शरीर हूँ? नहीं हूँ। हाँ, आई एम द पावरफुल सोल, है ना। तो मैं कौन हूँ? मैं एक सोल हूँ, और सिर्फ सोल नहीं हूँ बल्कि मैं पावरफुल सोल हूँ। कौन सी सोल हूँ ये भी हमें याद रखना है। यहाँ पर भी एक हमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव थॉट लेना है, एक पावरफुल थॉट लेना है। तो उस थॉट के साथ है ना, जैसे बताएं, आई एम पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम प्योर सोल, है ना। तो ऐसे जो थॉट्स है, मैं कौन सी टाइप की सोल हूँ, आई एम स्पेशल सोल, है ना। और क्या कहेंगे आप में मन में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? मैं कौन सी सोल हूँ? ऑनेस्ट सोल हूँ, हैप्पी सोल हूँ, और प्रेम स्वरूप हूँ, आई एम लवली सोल, सुख स्वरूप हूँ, आई एम ब्लिसफुल सोल, पीसफुल सोल, हैप्पी सोल, है ना। दया स्वरूप हूँ, है ना।
और जैसे अभी इसी थिंकिंग के साथ, इसी थॉट के साथ हम अपना मेडिटेशन शुरू करेंगे। तो जैसे बताया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा कैसी है? एक प्योर एनर्जी है ना। इस बॉडी में, इस शरीर में जो एक प्योर एनर्जी है, और वो एनर्जी ही आत्मा है। ये शरीर को चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति है। शरीर अपने आप कुछ नहीं कर रहा है, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। जैसे मोटर गाड़ी है, कार है, उसको चलाने वाला ड्राइवर होता है, ठीक वैसे ही यह शरीर रूपी गाड़ी है और हम आत्मा, वो एनर्जी है जो इस गाड़ी को चला रही है। और इसकी सीट कहाँ पर है ना? मस्तक के बीच में, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, जिसको भ्रुकुटी भी कहते हैं, सेंटर ऑफ द फोरहेड। यहाँ पे वो प्योर एनर्जी रहती है ना, सोल, और वो है पॉइंट ऑफ लाइट, या एक शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा। तो जब इसको हमें यहाँ पे महसूस करना है ना, कि मैं कौन हूँ? आई एम प्योर सोल। तो जब हम प्योर सोल कहते हैं तो हम यहाँ पे अपने आप को विजुअलाइज करेंगे कि मैं एक चमकता हुआ सितारे के रूप में हूँ और मैं एक प्योर सोल हूँ और मुझसे एक प्योर एनर्जी निकल रही है ना, प्योर लाइट, वो किरणें निकल रही हैं और जो पूरे हॉल में फैल रही है, मेरे आसपास में फैल रही है। तो ऐसे हम थॉट क्रिएट करेंगे और उसके बाद अभी हमें जुड़ना है परमात्मा के साथ। अब देखिए, जब आपने ये थॉट क्रिएट किया कि आई एम प्योर सोल, प्योर एनर्जी, है ना, और हमसे वो प्योर एनर्जी स्प्रेड हो रही है, कैसा फील हो रहा है? बहुत लाइट, हल्का महसूस हो रहा है और पीसफुल महसूस हो रहा है और बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, अच्छा फील हो रहा है। अब हमें इस फीलिंग को और भी बढ़ाना है ना, या उस एनर्जी को और भी हाई लेवल पे लेके जाना है। तो अभी हम जुड़ेंगे परमात्मा के साथ। तो जैसे है ना, आत्मा का भी पिता है, जिसको परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह कई नाम है, लेकिन यहाँ पर हम जैसे है ना, मनुष्य का पिता मनुष्य है, वैसे आत्मा का पिता परमात्मा है। तो जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, स्टार है, चमकता सितारा है, ज्योतिर्बिंदु हम कहेंगे। तो परमात्मा भी कैसे है? वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु है ना, वो भी एक लाइट ही है, एक प्योर लाइट है, पावरफुल लाइट है, ऑलमाइटी कहेंगे हम उनको। और वो रहते कहाँ हैं? जैसे हमने कहा आत्मा तो यहाँ है, अब परमात्मा रहते कहाँ है? क्योंकि जब तक उनका एड्रेस पता नहीं है तो उनसे हम मिलेंगे कैसे, उनसे हम कनेक्ट कैसे होंगे? परम धाम है ना, तो वो परमात्मा का रहने का स्थान जो आसमान से भी ऊपर है ना, बहुत दूर, जिसको हम परम धाम कहते हैं, कि एक ऐसा लोक है या तत्व है, ब्रह्म तत्व कहेंगे, परम धाम, कि जहाँ पे चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट है और बहुत प्योर एनर्जी है, पावरफुल और बहुत ही पीसफुल एनर्जी है। तो अभी हम मेडिटेशन में चलेंगे, परमात्मा के साथ, परमात्मा के पास जाएंगे और उस एनर्जी को से कनेक्ट होंगे, वहाँ से वो पावर्स लेकर के आएंगे, अपने आप को चार्ज करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, रेडी है सभी? चले अभी हम जैसे आपको इंस्ट्रक्शन देंगे तो बस आपको उस एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है। मेडिटेशन में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी आप थॉट क्रिएट कर रहे हैं उसको विजुअलाइज करना और उसको फील करना। तो मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, एक एक थॉट आपको दे रही हूँ, तो उस थॉट के साथ आप विजुअलाइज भी करेंगे उसको, और है ना, कुछ बातें हैं जिसको विजुअलाइज करेंगे, कुछ बातें हैं उसको फील करेंगे। तो जैसे हमने कहा आई एम द सोल, है ना, एक शाइनिंग स्टार मस्तक के बीच में है, तो इसको विजुअलाइज करेंगे। और जब कहते हैं कि आई एम प्योर सोल, प्योर एनर्जी, तो उसको हम फील करेंगे। सॉफ्ट म्यूज़िक बजेगा। सबसे पहले अपने मन को शांत करें।
एकाग्र करें, अपना ध्यान स्वयं के ऊपर ले आए, खुद को देखें, और महसूस करें कि मैं शरीर नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। अब अपने ध्यान को मस्तक के बीच लेकर आए, उस प्योर एनर्जी फील्ड जहाँ पे हमारी प्योर सोल है, सेंटर ऑफ द फोरहेड। विजुलाइज करें कि हमारे मस्तक के बीच एक बहुत सुंदर स्टार चमक रहा है। और मन में थॉट क्रिएट करें, आई एम प्योर सोल, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे प्योर एनर्जी निकल रही है। उस रेज को विजुलाइज करें कि हमारे मस्तक से पवित्र किरणें निकल रही हैं जो चारों ओर फैल रही हैं। प्योर फीलिंग के साथ अब इस शरीर से डिटैच हो जाए और फील करें कि अब हम इस भौतिक दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं, ऊपर आसमान की ओर जा रहे हैं। चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर, आसमान से भी परे। अब हम बहुत ऊपर चले गए। देखिए चारों तरफ सफ़ेद लाइट है और इससे भी ऊपर परम धाम है। फील करें कि आप अभी परम धाम में पहुंच गए, जहाँ पे चारों ओर गोल्डन रेड लाइट है। चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश है। पॉजिटिव एनर्जी है। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। फील करें कि यहाँ की पीस की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी मैं आत्मा एब्जॉर्ब कर रही हूँ। बहुत लाइट फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है।
सामने परमात्मा को विजुलाइज करें, एक डिवाइन लाइट, एक रोशनी सूर्य की तरह चमकता हुआ परमात्मा का वो रूप देखें। उनकी पावरफुल किरणें चारों ओर फैल रही है। अब फील करें आप उस परम पिता परमात्मा के बिल्कुल करीब हैं, उनके सामने हैं। परमात्मा पवित्रता के सागर है और उनसे पवित्र किरणें आपके ऊपर आ रही है। कंटिन्यूअसली परमात्मा से निकली हुई पवित्र किरणें आपके ऊपर पड़ रही है और वो आपके अंदर प्रवेश हो रही है। परमात्मा की पवित्रता की शक्ति आत्मा में भरती जा रही है। फील करेंगे, अपने आप को चार्ज होते हुए फील करेंगे। गॉड्स पावर्स एंड ब्लेसिंग्स मुझे आत्मा को मिल रहे हैं। और मैं बहुत ब्लेसफुल फील कर रही हूँ। हैप्पी फील कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत सेफ फील कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। इस प्योर एनर्जी के साथ मैं अपनी लाइफ में, इस लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ूंगी। अपना भी ध्यान रखूंगी, साथ साथ औरों का भी ध्यान रखूंगी। सदा उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट रहूंगी। अब नए साल के लिए, अपनी नई शुरुआत के लिए कोई एक पावरफुल संकल्प लीजिए। कि जो आज से हम शुरू करेंगे। अब परमात्मा का दिल से धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें और परम धाम से वापस नीचे आ जाएं। वापस अपने शरीर में, मस्तक के बीच में मैं प्योर सोल, प्योर एनर्जी, ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच. आप सभी का दिल से धन्यवाद. थैंक यू दीदी फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन. सब लोगों ने एंजॉय किया हैप्पीनेस को. एवरीबडी गुड फील. So we have to continue this happiness till next week. We have to preserve our happiness and help others to uplift their happiness, right? Okay, so we will thank Sridhi. And as you all know, New Year is coming. So we have beautiful desktop calendars and New Year diaries at Literature opposite to reception. So you can also see that, and if you like, you can buy them. Thank you.